हाँ भैया। Right, this is what we have got. So that implies we get the value of z. सर वो 4n नहीं होना चाहिए? पाई बाय 4n Theta by हाँ theta by 2. theta by 2 Iota tan theta by 2. So pi by 4n. Yes. Right. So what is the value of z? Z comes out to be equal to minus 1 upon iota tan of what? 4k plus 1 pi by 4n. Right. Minus को ऊपर लेगा तो minus iota हो जाएगा plus iota. So this is iota cot 4k plus 1 pi by 4n. तो z आ गया. तो z क्या आया? It is iota cot 4k plus 1 pi by 4n. ये स्कूल में मत दिखा देना, शुरू हो गए जी. ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा. Please help us out. Right? So what have we got? That implies imaginary part, the real part of z is coming out to be 0. हाँ भैया. Right? If this is equal to x plus iota y, if we do this implies x value is equal to 0. हाँ भैया. And y value is cot 4k plus 1 pi by 4n. And the way where the k values become, k की कौन सी values हैं? 0, 1, 2 till what? n minus 1. n minus 1. तो आ गया. यानी z is purely imaginary. This is a purely imaginary number. और purely imaginary number है, इसका मतलब y axis पे है. Implies all points are on what? Y axis. Y axis. ये बात समझ आ रही है? रो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? k के हिसाब से आएंगे. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स y axis पे होंगे. फीलिंग आ रही है? ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया. They are points representing z. ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? Yes. खत्म हो गई बात. हाँ इसमें भैया. आंसर क्या आ गया? इसमें आंसर क्या आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आंसर. देखो लीनियर. देखो लीनियर. क्लियर है ये बात सबको? हाँ भैया. राइट है ना. अब लग रहा है कुछ कर रहे हैं आईटी तैयारी, कुछ पेलम पाली चल रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से कुछ भी हो गया. बेसिकली लाइफ में लग रहा है कुछ भी ऊपर नीचे जाता है ना. वैसे तुक्के से यहाँ हम बच गए थे ऑलमोस्ट. यहाँ हम ऐसे पेल सकते थे, है ना. मतलब जस्ट बच गए हम कि वी टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स. वी हैव z plus iota. z plus iota था क्या था क्वेश्चन? z minus 1. z minus iota. So it is z minus 1 equal to iota times of z plus 1 to the power n. This is given to you, है ना. अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कहानी होती है. टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स. टेक मॉड ऑफ बोथ साइड्स. दोनों साइड का मॉडुलस सेम होगा अगर दोनों साइड सेम है तो. If we take mod of both sides, so we get mod of z minus 1 to the power n is equal to mod of iota times z plus 1 to the power n, है ना. तो ये क्या हो गया? mod of z minus 1 to the power n is equal to mod of z plus 1 to the power n. I hope अब समझ आ रहा है. मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ. ये mod iota पहले अलग अलग करा. mod iota into mod of this और mod iota 1 होता है. चलो, is it clear? है ना. And then we can straightforward write that mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1. ये बात समझ आ रही है? ये बात क्लियर है? इन जनरल दिस इज अ डेंजरस ऑपरेशन. इसमें हैप्पी बर्थडे आता है, राइट. सो इफ यू हैव y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, तो यू कांट से y इज इक्वल टू x. खत्म. y इक्वल टू माइनस x पीछे से आएगा, लात मारेगा. ये बात समझ आ रही है? यू कांट सिंपली रिड्यूस पावर्स. तो इन जनरल दिस इज नॉट अलाउड. इन जनरल beware of dogs. You can't do this, है ना. पर यहाँ जस्ट बच गए. क्यों बच गए? निपटे नहीं. Because there was mod. We know this is always positive value. We know this value is also always positive. तो ये भी always positive value है, ये भी always positive value, and this is raised to the power n. तो कोई दिक्कत नहीं है. काट दोगे तो ये always positive values आएंगी. You can't have this is equal to minus of this. You can't write this mod is equal to negative of this mod. ये नौटंकी नहीं होगी. ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया. ये बात समझ आ रही है कि if we have mod x mod y का square is equal to mod x का square, that by default implies mod y is equal to what? Mod x. There is nothing else. ये बात समझ आ रही है? पर यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है.
ठीक है, इन जनरल बिवेयर बिफोर रिड्यूसिंग पावर, कि जी बारात में आ रहे हैं जी, ऐसी पावर रिड्यूस कर दी, खत्म जी, है ना। कुछ लोग सर पकड़े बैठ जाएंगे कि क्या क्या सोचें, इससे तो केमिस्ट्री है ना, ये सब सोचना पड़ेगा। So this mod of z minus 1 is equal to mod of z plus 1. Now this is a very simple thing. You can feel this geometrically कि z का distance 1 से is same as z का distance minus 1 से. This is nothing but mod of z minus 1 equal to mod of z minus of minus 1. तो z का किसका डिस्टेंस निकालना है? माइनस 1 से। तो हम कह रहे हैं जी z का डिस्टेंस 1 से और माइनस 1 से सेम होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो कैन दैट पॉइंट बी ओरिजिन? विल ओरिजिन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? हाँ भाई, Will a point which is let's say 1, 0 satisfy this equation? हाँ Yes, sir. हाँ भैया, It will form an isosceles triangle. हाँ In fact, any point here will satisfy this. It is perpendicular bisector. Yes, sir. yes भैया, समझ आ रही है बात? This actually is equation of line representing perpendicular bisector. It is equation of line. I don't want to get into geometry, but I'm getting into geometry unfortunately. This equation of line representing perpendicular bisector of line segment formed by points 1 and minus 1. ये फीलिंग आ रही है? ये फीलिंग आ रही है? हाँ तो यहां से डायरेक्टली आंसर आ गया। यहां से डायरेक्टली आंसर क्या आ गया? दैट इंप्लाइज z is equal to what? It is purely imaginary. Right, which implies x is equal to 0 or x equal to 0 line is the locus. ये बात समझ आ रही है Yes, sir. कि any point on this line will satisfy this? ये बात समझ आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं भैया, राइट ना। इसको हम मतलब we can make a theory out of this. We can simply make a theory out of this कि हमने करा क्या यहाँ पर, राइट कि हम कह रहे हैं जी अगर हमारे पास या कुछ भी लेते हैं 4 और 2 ले लो, कुछ भी कर लो, मतलब लेट से, या चलो क्वेश्चन लेते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होगी, या क्वेश्चन ही करते हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम। लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये ले लेते हैं, लेट्स से इसमें आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन नंबर 20। सो नाउ विल डील विद प्योर ज्योमेट्री, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ज्योमेट्री की बात कर लीजिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ज्योमेट्री की बात करते हैं। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। Right, so examiner says the inequality represents region given by, what is the inequality given to you? Inequality given to you is mod of z minus 4 is less than mod of z minus 2. That's the inequality given to you. Mod of z minus 4 is equal to mod of z minus 2, right, है ना। तो बेस्ट तरीका है distance of z from 4 should be less than distance of z from 2. 2 ये करना है। तो बेस्ट तरीका क्या है? फर्स्ट सॉल्व द इक्वालिटी, फर्स्ट सॉल्व द इक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी जी? मॉड ऑफ z माइनस 4 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2। इक्वालिटी सॉल्व करनी है। इफ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वालिटी, यू नो व्हाट हैज टू बी डन, है ना। ये तो सीधा सीधी कहानी, तो देसी हिसाब है कि जी एक नंबर क्या चाहिए 4 और एक नंबर है 2, ये 1 2 3 एंड 4, राइट। तो z का डिस्टेंस 2 से जितना है उतना ही 4 से होना चाहिए। तो 2 और 4 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर व्हाट इज दैट? 3 3 x equal to 3 लाइन। हम्म, This is x axis, this is y axis. लॉजिक क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि अगर z यहां पर होगा तो उसका 2 से जितना डिस्टेंस है उतना ही 4 से होगा। ये बात समझ आ रही है? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि z का डिस्टेंस 2 से ज्यादा हो
और 4 से कम 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 हो, हो। यानी वो 4 के पास होना चाहिए। इस पॉइंट पे अगर है तो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है। कैन वी से अगर इधर होगा कहीं भी z तो 4 के पास होगा। हाँ भैया Yes, sir. अगर इस रीजन में कहीं भी z होगा तो 4 के पास होगा। चेक कर लो, यहां पर है z, पक्के से 4 के पास होगा, 2 से ज्यादा डिस्टेंस होगा। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, है ना, लक्ष्मण रेखा, तो ये 2 के पास हो जाएगा ये, और 4 से दूर हो जाएगा। ये फीलिंग आ रही है? हाँ भैया। इज इट हाँ क्लियर? Yes. So what is the locus? What does this region represent? It represents that real part of z should be greater than 3. x equal to 3 का मतलब क्या है? Real part of z is equal to 3. या तो ये लिख लो x is greater than 3. या लिख लो real part of z is greater than 3. That is the locus. So it represents a planar region which is beyond this x equal to 3 line towards the positive x-axis. Logic clear है? Yes, sir. हाँ हाँ भैया भैया। Right? So it's a pretty simple question based on geometry. Geometry से करते हैं बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये हो गया आंसर। सर प्योर अलजेब्रा से कर सकते हैं? अब अलजेब्रा छोड़ देते ना, बहुत हो गया। अलजेब्रा से करना पड़ेगा, x प्लस आयोटा y लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, मॉड लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सर नहीं, बस वही पूछ रहा था, कर सकते हैं? x प्लस आयोटा y लिखना पड़ेगा, फिर मॉड लोगे, फिर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस आयोटा y लिखो, y माइनस 4 का स्क्वायर सॉल्व करोगे, यहाँ x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, फिर x कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर xy की शायद कुछ इक्वेशन आएगी, हो सकता है xy भी कैंसिल आउट हो जाए। तो उससे देखना पड़ेगा, उससे मतलब मैथ से तो हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। मैंने करा नहीं, x प्लस आयोटा y minus 4 is less than equal to what? X plus iota y क्या है साथ में? minus 2 will be spending some time on this, टाइम लग जाएगा। ऐसे करेंगे, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या x minus 4 का होल स्क्वायर प्लस iota टाइम्स y का y, सॉरी स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, ये करना पड़ेगा ना। यस सर। तो जब कुछ ना समझ आए तो रामबाण है, put z is equal to x plus iota y and you can convert into Cartesian form। तो ये क्या हो गया, इसका मॉड क्या हो गया? राइट, अभी दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी ले सकते हैं। x3 आएगा। we can take square, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ या x minus 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज लेस देन x minus 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यस सर। ये अब क्या हो गया जी, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर दैट इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर। ये कट गए, राइट, एंड इससे शायद आंसर आई जाना चाहिए। ये 8x और ये क्या है 4x, 4x। तो ये 8x हो गया ना, यहाँ पे इधर चला गया और ये इधर पहुंचा था, x3 आ जाएगा इससे, है ना। तो ये क्या हो गया, 12 is greater than is less than what 4x, that implies x is greater than 3 आ गया, वही आ गया, सॉल्व हो गया। देखो ये अलजेब्रा से हो गया, तो हो गया सॉल्व। ये बात समझ आ रही है? यस सर। कुछ नहीं समझ आएगा तो रामबाण, पुट z equal to what, x plus iota y and then apply normal logic। तो ये पक्का है कि कॉम्प्लेक्स का आंसर आना श्योर है if you'll put x plus iota y, unless until वो मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी है ना, वो एक्सपोनेंट्स वाली कहानी है, उसमें यूलर्स फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर है? हाँ भैया राइट, है ना। तो वही जनरलिटी में कर सकते हैं कि इन जनरल इफ वी से दैट z minus z1 का मॉड इज ग्रेटर देन z minus z2 का मॉड, राइट, इन जनरल इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब क्या है, z का डिस्टेंस, है ना, कुछ भी है, ये एक नंबर है z1, ये एक नंबर है z2। तो पहले इक्वालिटी सॉल्व करो। इक्वालिटी करनी है तो इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, mod of z minus z1 equal to mod of z minus z2। फीलिंग आ रही है? इस लाइन पे जो भी z होगा उसका दोनों से डिस्टेंस क्या होगा, Equal. इक्वल होगा, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब तुम्हें क्या चाहिए, z का z1 से डिस्टेंस ज्यादा चाहिए और z का z2 से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। तो z z2 की साइड होना चाहिए, इसका मतलब
तो ये लोकस हो गया तुम्हारा सारा, दिस विल बी योर लोकस। ये क्लियर है बात? दिस इज योर लोकस ऑफ जेड। राइट, और ऐसे वाहियात क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर ज्योमेट्री से ही होंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेढ़े टेढ़े टूढ़े क्वेश्चन आएंगे उसमें एक्स वाई के टर्म्स आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है उसको डिफाइन करना, फिर वो ज्योमेट्री से ही होंगे। राइट, तो तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आड़े टेढ़े आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी। राइट, वी कैन डू अनदर क्वेश्चन। राइट, या ऐसा कुछ कर लो, एग्जांपल ले लो, mod of z minus 2 iota is greater than mod of z minus 4 iota। ये दो कौड़े घटिया टुच्चा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, 2 iota प्लॉट करो, 4 iota प्लॉट करो, उसका क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट, this represents z minus 2 iota equal to z minus 4 iota। अब तुम्हें क्या चाहिए, z किसके पास चाहिए, 4 4 के पास के चाहिए, पास। ओके ये हो गया। राइट, तो यहाँ पे यह लोकस क्या आएगा कि y is greater than 3, that is the locus। राइट, और imaginary part of z is greater than 3। 3 आयोटा से बड़ा होगा ना? 3 आयोटा नहीं ना, y लिख दिया, y तो वो है ना, x प्लस आयोटा y लिखते हैं ना z को, हाँ, उस फॉर्म में। ठीक वो है। आयोटा तो हम अलग से लिखते हैं ना, x प्लस y थोड़ी लिखते हैं z को, x प्लस आयोटा y लिखते हैं, हम्म, तो आयोटा ऑटोमेटिकली आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है कैसे करा है, समझ आ रही कहानी? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ भैया। Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। गुरुजी घटिया क्वेश्चन। राइट, सिंपल क्वेश्चंस। हाँ, जल्दी से करो इसको। I'll put another question. Then I'll put another question based on similar geometry. Right, 25th. So yesterday night I was just trying to get some questions for you. तो मैं पूरे वो वही कॉपी कर रहा हूँ। Right. So we were on which question? Question number 21. लो, ये घटिया क्वेश्चन है। क्या करना है जी, क्या दे रखा है, mod of z minus 5 iota is equal to mod of z plus 5 iota. This is given to you, so the pointer is not visible, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। So mod of z plus minus 5 iota is equal to mod of z plus 5 iota. This is given to us. ये क्लियर है बात? ये अगर दे रखा है तो क्या करोगे आगे, तो क्या प्लॉट करना है, प्लस 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, यहाँ पर होगा 5 आयोटा और यहाँ पर क्या होगा माइनस 5 आयोटा। तो z का डिस्टेंस 5 आयोटा से और 5 माइनस 5 आयोटा से सेम है,
Yes, sir. लोकस क्या हो गया? X axis. x एक्सिस. X axis. लोकस इज x एक्सिस. पढ़ो और मार्क करो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर. मतलब दैट मींस y इज इक्वल टू 0. ये लोकस है. x कोई भी पॉइंट हो जाए तो व्हाट इज इट? इट इज x एक्सिस. है ना? 10 सेकंड, नॉट इवन 10 सेकंड्स. ये क्लियर है बात? है ना? है ना? वरना सॉल्व कैसे करोगे? पुट x इक्वल टू x प्लस iota y, z इज इक्वल टू x प्लस iota y, and then find mod and then solve it. ये क्लियर है? और Yes, sir. put z is equal to x plus iota y and find mod and solve. तो उसका आंसर ये आने वाला है, y is equal to 0. लॉजिक क्लियर है? हाँ भैया. है ना? यहाँ बात करते हैं लो, ये सिंपल क्वेश्चन. यहाँ क्या रखा है? लोकस रिप्रेजेंटेड बाय z is equal to 1 equal to z is equal to plus iota. So now you have to find locus of z minus 1 है. Yes, z minus 1 का mod equal to z minus of minus iota. z minus iota, z plus iota, z plus iota दे रखा है. राइट? तो z का डिस्टेंस किससे? 1 से और माइनस आयोटा से क्या होना चाहिए? Equal. इक्वल. इक्वल. तो प्लॉट कर लो. कैसे जी? एक तो चाहिए 1 और एक क्या होगा? माइनस आयोटा. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. ये फीलिंग आ रही है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है? ये फीलिंग आ रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन? हाँ भैया. ये फीलिंग आ रही है? 45 डिग्री है. और एंगल 45 डिग्री होगा. और ये लाइन क्या होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स. क्लियर है? हाँ भैया. ये आ गया लोकस ऑफ z. मैथ से आ गया सीधा सीधा फीलिंग से. और शुरू हो जाओ गधों की तरह से. z इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस आयोटा y आयोटा y. एंड फाइंड मॉड एंड सॉल्व. तो आंसर ये आने वाला है, y इक्वल टू माइनस एक्स. ये लोकस आ जाएगा. लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. Right, so these are all 10 second questions. Let's talk about this question. No, if imaginary part of 2z plus 1 upon iota z is equal to minus 2. Right, तो दिखने में लगते हैं तरीके से वाहियात क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन बहुत आसान ही है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. है ना? If imaginary part of this then is given minus 2, then the locus of point represented by z is. तो दोबारा locus of z निकालना है. अब तो मैं सीधा बता दिया. Imaginary part of z. I don't know. Again, the system has gone berserk. Wait a minute. So I just press at some points and that leads to तो तुम्हें क्या दे रखा है? Imaginary part is given. So you have been told that imaginary part of 2z plus 1 upon iota times z minus 1. Sorry, again this is plus 1. This value is equal to minus 2. This is given to you. ठीक है? अब देखो, there are two ways of representing this. एक तरीका तो क्या है जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, this I always prefer, option 1. वो क्या है? Put z equal to the रामबाण x plus iota y. Plus iota y. देसी कहानी. Option 2, how do you represent imaginary part? Option 2 is कि जी imaginary part of z can be written as what? Z plus z, sorry, z minus z conjugate by 2. By 2 iota. By 2 iota, yes, you're right. By 2 iota. समझ आ रही बात? अभी ऑप्शन 2 अभी घर में ट्राई कर लेना, कोई बहुत ज्यादा इससे कोई फायदा होगा नहीं. कि ऑप्शन 2 अगर ट्राई करें, वाया ऑप्शन 2 करें, तो कुछ ना मतलब मजा आएगा नहीं. बेसिकली कुछ ना कुछ करके अगर और तिरम लगा के आंसर तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ लगा के, पर एकदम से आया नहीं था. तो यू गॉट 2z. सो व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व दिस अपॉन iota times z plus 1 minus
तो इंस्टेंट फीलिंग की बात जो हो रही थी वो मुझे कुछ लगा नहीं था कि कुछ होने वाला है. आयोटा कॉन्जुगेट माइनस आयोटा हो जाएगा एंड देन दिस इज जेड कॉन्जुगेट प्लस 1. ये क्लियर है क्या लिखा है मैंने? ये समझ आ रहा है? थोड़ा मैं उसमें आ गया बेसिकली, जल्दी जल्दी पिल दिया. चलो छोड़ो, ऐसे मत लिखो, कुछ लोग घबरा जाएंगे जी क्या पिल दिया ये आपने. का होल कॉन्जुगेट इज गिवन डिवाइड बाय 2 आयोटा. ये तो है ना. दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. अब कुछ भी करके दिस इज इक्वल टू गिवन, दिस इज गिवन टू यू एज 2 एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इसको सॉल्व करोगे, इस 2 को उधर पहुंचा दोगे तो ये भी भैया वो सॉल्व. -2 था. क्या -2 था. -2. तो ये बहुत मतलब इसमें कुछ मजा नहीं आएगा, एक बार देख लेना. You will try to solve this. This will not be very good equation. मतलब मैं लिख देता हूँ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2z plus 1 into what? This is minus iota z conjugate plus 1 minus twice of z conjugate plus 1 into iota times z plus 1. No, upon what? Twice iota into, can I say this is equal to mod of iota z plus 1 का square, because z into z conjugate होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में. चेक कर लेना. That is equal to -2. ये कहानी आ रही है. Right, so you can try and solve this. इससे कोई कुछ बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं. हो सकता है आ जाए आंसर, हो सकता है डायरेक्टली आंसर आ जाए. मैंने ज्यादा सॉल्व ना करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया हो, तो इससे भी उसका आंसर आ जाए. Right, so this is one option to convert imaginary part into complex form. The other option is better, है ना. Put z is equal to what? x plus iota y. खत्म, स्टैंड कहानी. तो imaginary part of z, wait a minute, where were we? अच्छा दूसरी स्लाइड है. हाँ, तो imaginary part of z, ऑप्शन 1. तो imaginary part of क्या था जी? 2z plus 1 upon iota z plus 1 था, is equal to 2 -2 लिखा था. तो that implies imaginary part of twice of x plus iota 2y 2y plus upon iota x minus 5 plus 1 will be equal to -2. Put z is equal to x plus iota y. Is it clear? हाँ भैया. है ना. इसको रैशनलाइज टाइप कर देंगे, है ना, आंसर निकाल लेते हैं. तो ये क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2x plus 1 plus iota times 2y upon 1 minus y plus iota x is equal to -2. This is given to us, है ना. So I can write this as imaginary part of 2x plus 1 plus iota times 2y, right, है ना, into क्या लिखोगे? 1 minus y minus iota times x upon 1 minus y minus iota times x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. ये क्लियर है? रैशनलाइज कर दिया मैंने, काइंड ऑफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है. हाँ भैया. आई होप इट इज क्लियर. जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं अब थोड़ा सा. ठीक है जी. अब इसमें से इमेजिनरी पार्ट निकाल लो. रियल पार्ट इसके रियल से मल्टीप्लाई करेगा, बकवास है. इसका इमेजिनरी इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेगा, वो भी रियल देगा. इमेजिनरी कब आएगा? जब इसका रियल इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, राइट. तो वो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? इट विल बी 2x plus 1 into -x, है ना, प्लस इसका रियल इसके इमेजिनरी से करेगा 2y into 1 minus y. ये तो होगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन 1 minus y का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. दिस वैल्यू इज इक्वल टू -2. आई होप ये समझ आ रहा है क्या कर रहा है मैंने. हाँ भैया. Yes. Let's take out the imaginary part now. बस खत्म. x y में इक्वेशन होंगी, सॉल्व करना है इसको. तो घटिया क्वेश्चन है. -2x स्क्वायर माइनस x, राइट, प्लस 2y minus 2y स्क्वायर इक्वल टू -2x स्क्वायर minus 2y स्क्वायर minus 2 प्लस 4y हो जाएगा मेरे ख्याल से. मैंने मल्टीप्लाई इकट्ठे कर दिया है ना. ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y होगा ना. यस, आई थिंक आई हैव डन इट करेक्टली. देखते हैं, गलती होगी तो पता चल जाएगा. ये कट गया, 2y स्क्वायर से कट गया. वेरी नाइस, आई एम हैप्पी. क्या बचा? सो व्हाट वी गेट इज 2y और यहाँ पर आ गया 2y. सो वी गेट इज -x plus 2y equal to -2. ये आ गया. That's it.
तो ये तो सॉल्व करना था बेसिकली, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन को। अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं करना था, इमेजिनरी पार्ट का एक इक्वेशन लिखनी थी और z को क्या पुट करना था, x प्लस आयोटा पर सॉल्व करना शुरू कर देना था, दैट्स इट। अब क्या पूछा है, लोकस पूछा है, तो लोकस आ गया स्ट्रेट लाइन। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, ये माइनस होगा, ठीक है। That implies x plus 2y equal to 2 is the locus, ये लाइन आ गई। Implies locus of z is a straight line। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करा है? Yes, sir. Is there a clarity? Yes, sir. ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइन हो गया खत्म। तो लोकस में कुछ है ही नहीं, सिंपल कहानी। क्या करना है, पुट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ना समझ आए तो पुट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड सॉल्व, खत्म, दैट्स हाउ इट इज, राइट है ना जी। 24 25 करते हैं अभी, लेट्स डू 26 फर्स्ट, निकल लेते हैं पहले, लेट्स टॉक अबाउट 26 फर्स्ट, है ना जी। तो ये इसकी बात करते हैं, z is equal to x plus iota y satisfies this equation, so you have been given that this satisfies this equation, then the value of x minus 1 by y, x minus 1 by y is equal to, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर ही है, एग्जाम ने खुद ही बता दिया, खुद ही हाथ जोड़ के कह रहे जी देखो मैं दे रहा हूँ, प्लीज डोंट अप्लाई योर हेड, अप्लाई माय हेड। व्हाट डज माय हेड से, पुट z is equal to what, x plus iota y. X plus iota y. है ना। करने नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, हम अपना कुछ करेंगे, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 1 is equal to आर्ग्यूमेंट ऑफ z plus 3 iota, so please keep on writing, तो बाद में लिखने का मन नहीं करेगा, अभी लिख लो, आगे खत्म करो जितना लिख सकते हो, राइट, है ना। दैट implies आर्ग्यूमेंट ऑफ x plus iota y minus 1 is equal to आर्ग्यूमेंट ऑफ x plus iota y plus 3 iota, this implies आर्ग्यूमेंट ऑफ x minus 1 plus iota y। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसी स्ट्राइक कर गया एक और तरीके से करने का जी, x plus iota 3 plus 5। तो when I was trying to solve, I just try and feel every question कि क्या दे रखा है। It talks about argument of a complex number represented by x minus 1 and y. So what we're trying to say is there is a complex number which is x plus iota y. This is x and here there is suppose y. यहाँ पे है y, है ना। Now we are talking about x minus 1. Here there is this value must be x minus 1. ये लेंथ होगी कुछ x minus 1 ऐसे मान लेते हैं, तो ये x minus 1 है, तो x minus 1 comma y ये पॉइंट है, this point is x minus 1 plus iota y, this is the complex number। ये बात समझ आ रही है? इसका आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, ये अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो ये आर्ग्यूमेंट, ये तो आर्ग्यूमेंट हुआ ये वाला θ1, ये फीलिंग आ रही है। और x में क्या कर रहे हैं, x सेम रख रहे हैं और y प्लस 3 कर रहे हैं, 3 प्लस y कर रहे हैं, तो y में 3 यूनिट ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये लाइन मतलब दिस इज एक्चुअली नॉट ड्रॉन एग्जैक्टली टू स्केल, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाया था, थोड़ा पास बनाया था, थोड़ी बेटर लाइन हो जाएगी, ऐसे कर लो, नॉट ड्रॉन टू स्केल, टेक्स्ट थोड़ा पास में ही आ रहा होगा। तो ये लाइन अगर मैं सोचूं, राइट, नॉट रियली ड्रॉन टू स्केल, थोड़ा और पास करना पड़ेगा इसको, अब ठीक हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो दिस पॉइंट मस्ट बी y प्लस 3, दिस कोऑर्डिनेट इज x माइनस 1 कॉमा y, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा y प्लस 3, ये होगा ना, ये y प्लस 3, ये 3 यूनिट होगा, ये y यूनिट्स है। ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग आ रही है। इन दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है, सेम, तो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, इसका मतलब यही होगा दोनों सेम लाइन अप्लाई करते हैं। ये फीलिंग आ रही है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes. और अगर ये सही समझ आ रही है तो क्लैरिटी आ जाएगी, ये लेंथ कितनी है y, और ये लेंथ कितनी है टोटल, Y plus 3. y प्लस 3, ये लेंथ कितनी है x X minus minus 1, y. और ये लेंथ कितनी है X. x। ये फीलिंग आ रही है, क्या कर रहे हैं हम कि x minus 1 by y, सिमिलर ट्रायंगल्स लगा रहे हैं,
इक्वल टू एक्स अपॉन व्हाट, y प्लस 3। ये फीलिंग आ रही है? x माइनस 1 बाय y। सर इसमें tan थीटा लेके इक्वल कर दो। या tan थीटा, सिमिलर ट्रायंगल वही तो था, tan थीटा बराबर करो। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब यही था, tan थीटा बराबर कर दो। बात से भी है। You can talk about tan theta in the first triangle. Tan theta is equal to what? Y upon x minus 1. And that is also equal to what? Y plus 3 upon x. Is it clear? यस सर। Right? है ना? तो वो tan theta वाली कहानी भी आती है डायरेक्टली, इससे भी डायरेक्टली यही कहानी आती है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो tan इनवर्स होता है। तो दिस आर्ग्यूमेंट एक्चुअली इज, यू कैन टॉक अबाउट दिस, ये मैं नीचे लिख दूं। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो tan इनवर्स की कई मतलब होता है इसका, कि दैट इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x माइनस 1। तो वो आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स ही होता है। tan इनवर्स ऑफ, अगर तुम्हें याद हो वही करा था हमने, tan इनवर्स ऑफ b बाय करा था हमने। इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस y बाय x, वही करा हुआ है बेसिकली। दोनों का tan इनवर्स सेम है, और tan इनवर्स सेम है तो वो अंदर की वैल्यू भी सेम है। दैट इंप्लाइज y अपॉन x माइनस 1, tan ले लो, दोनों साइड का tan ले लोगे तो ये काम हो जाएगा। That's how it is, and then you have to solve this. So you get xy is equal to x minus 1 into 3 plus y, which is equal to 3x plus xy minus 3 minus y. That's how it is, right? So xy cancel out. Okay, so what do we get? This gets 3x minus y equal to 3. ये आ गया आंसर। Is it clear? अच्छा, करना क्या था? x minus y by y निकालना था। अच्छा, x माइनस 1 बाय y निकलना था, तो 3x माइनस 3 कर लो, इसको ऐसे लिख लो। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y हो गया, इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू y, इम्प्लाइज x माइनस 1 बाय y की वैल्यू क्या हो गई? 1 बाय 3। 1 by वो तो मैथ्स हो रही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। दिस इज प्योर मैथ्स। आंसर इज 1:3। Is it clear? और देखो मैंने कुछ भी नहीं करा है, just put x equal to x z is equal to x plus iota y, and then I have to just put tan inverse। तुम ज्योमेट्री भी ना लगाओ, बाहर में की ज्योमेट्री, you just have to put tan inverse of this is equal to tan inverse in this, और दोनों का tan inverse सेम है तो अंदर की वैल्यू सेम है। ये क्लियर है? हाँ भैया। ये क्लियर ना कि √3 tan of 30 degrees is equal to 1 by √3 होता है? ये क्लियर है? तो 30 degrees is equal to what? tan inverse of 1 by √3। ये बात समझ आ रही है? हाँ। तो मैं बोलूं कि जी 30 degrees is equal to tan inverse of x, that is pretty clear। that is अंदर की तो दोनों वैल्यूज क्या होने वाली है? सेम। if these two are same, that implies अंदर की जो वैल्यू वो भी क्या होने वाली है? सेम। लॉजिक क्लियर है? हाँ भैया। राइट, तो हो गया। it's a pretty simple question, there is nothing spectacular in this। ये देख लो, let's do last question based on locus, right? So this is the last question based on locus we are doing, and then we'll do a couple of more questions in general theory, and then we'll end the class, right? and ये देख लो जी। so this is 1 plus iota z, so you have been given 1 plus iota z is equal to 1 minus iota z conjugate। अब घूर के देखो इसको, चील की आंख होनी चाहिए, चील की आंख। if this is your some complex number h or a, this is your complex number which is a conjugate। समझ आ रहा है? 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, यहाँ z, ये क्या है? z conjugate, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। so what you have been told is that a is equal to a conjugate। what does that imply? what does that imply? ओरिजिन है ये। that implies imaginary part of a is 0। अरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कॉन्जुगेट है, और बराबर कब होंगे? जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वरना बराबर हो नहीं सकते। ये बात समझ आ रही है?
ये क्लियर है कहानी? यू कैन सॉल्व इट बाय मैथ्स आल्सो कि x plus iota y, एग्जामिनर सेइंग x plus iota y is equal to x minus iota y. तो ये तभी होगा when x is equal to x. ये तो ऑलवेज ट्रू. और दूसरा क्या है? y equal to minus y. This is never true. है ना? Except if y is equal to what? 0. 0. So, ये दोनों तभी तो ट्रू होंगे जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा. खत्म हो गया क्वेश्चन. That implies what you have to do. इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 plus iota into z is what? 0. खत्म. और तुम ये नहीं सोच पाए तो भी हो जाएगा क्वेश्चन. ये बात समझ आ रही है? if you will not be able to think, still you will be able to solve the question. How? Z equals Z is equal to Equal X to X plus iota. Y. Z is equal to x plus iota y. अब हम कह रहे हैं थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाओ ना. अभी से पुट कर दो ना z equal to iota y. Imaginary part of this is 1 plus iota into what? X plus iota y. तुम पूरे में पुट करो ना इनसाइड. थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाओ. ये कह रहे हैं जी. तो ये क्या हो गया जी? दिस इज 1 plus 1 into x तो आएगा नहीं. तो 1 into ये iota y, तो यहां से y मिलेगा प्लस x. ये आ गया y प्लस x, राइट. और iota into iota वो तो रियल देगा, इक्वल टू 0. ये आ गया लोकस. ये आ गया लोकस ऑफ z. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द ऑप्शन क्या है जी. अच्छा, z इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दे रखा है. ओके, तो z क्या दे रखा है? इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है. इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है तो हम कह सकते हैं जी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया ना. दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख दो. एंड z क्या है? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ गया. ये तुम्हारा z है. एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई. तो माइनस वाई प्लस आयोटा y ये रिप्रेजेंट कर रहा है. वेयर y इज एनीथिंग, राइट. फिर y इज रियल ऑब्वियसली. तो ये 1 माइनस आयोटा वाली फॉर्म बन रही है. हाँ बन जाएगी ना. तो माइनस वाई कॉमन ले लो इनटू व्हाट? 1 माइनस आयोटा आ गया. वेयर y बिलोंग्स टू r. एंड you can call this as, or this is equal to lambda into 1 minus iota where lambda belongs to r. क्लियर है कैसे लिखा है? राइट. या तुम y को माइनस एक्स पुट कर देते और पुट और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लगा दो इसके अंदर, तो बिल्कुल ही वैसी फॉर्म बन जाएगी. z इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस आयोटा x, दैट इज इक्वल टू x इनटू 1 माइनस आयोटा, राइट, वेयर x बिलोंग्स टू r. तो आंसर आ गया. समझ आ रही है बात? Yes, sir. दिस इज आंसर. ये क्लियर है? 1 प्लस आयोटा तो नहीं आ रहा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता. एक बार चेक कर लें, ये वाला आंसर हो सकता है क्या? कैन दिस बी द आंसर? इस फॉर्म में आ जाए. सो दिस इज लैम्डा अपॉन 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कर दूं तो ये लैम्डा इनटू 1 प्लस आयोटा हो गया अपॉन क्या हो गया? ये 2 हो गया ना. फिर लैम्डा बिलोंग्स टू आर. नहीं, ये इसके बराबर फॉर्म होगी. ये वाली फॉर्म आ गई. दीज आर सिमिलर फॉर्म्स. तो ये भी आंसर नहीं है. They're similar forms. Lambda by 2 also belongs to R. If lambda belongs to R, then lambda by 2 also belongs to R. Right? और ये वाली फॉर्म क्या आ रही है? Lambda upon 1 plus 1. ये तो lambda by 2 आ गया. नहीं, ये भी आंसर नहीं है. Is it clear? Clear है कैसे कर रहे हैं? Right? तो लोकस के क्वेश्चन से बहुत सिंपल काम कर रहे हैं. Just we are putting z is equal to what? 1 plus iota. Right? We can try and do. हाँ बोलो. सर अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26 जो था, हाँ उसमें सर जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ था वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात चल रही थी उसमें, या फिर जनरल आर्ग्यूमेंट से भी हम सोच सकते हैं उसे कि एक का जनरल है एक का प्रिंसिपल है तो भी इक्वल रख सकते हैं हम? एक का जनरल है एक का प्रिंसिपल है और एक का जनरल आर्ग्यूमेंट होगा तो फिर सर इक्वल रख सकते हैं? तो अलग अलग वैल्यूज हो गई ना. आर्ग्यूमेंट तो हाँ, इसके तो- इनफिनिट हो सकते हैं. आर्ग्यूमेंट बराबर है उसको, इसको लिखने का मतलब क्या है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो बराबर है. ठीक है. उसको लिखने का मतलब क्या है
कि जो आर्ग्यूमेंट का corresponding tan थीटा की वैल्यू आएगी वो बराबर है। बात समझ आ रही है? वरना तो इनफिनिट आर्ग्यूमेंट्स है ना। हाँ तो इसको इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि वो आर्ग्यूमेंट ऑर्डर करना दोनों का जो tan थीटा वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो थीटा जो वो मर्जी सेम हो, हो जाएगी। तो वही तो मैंने कहा है tan थीटा वैल्यू है ना, ये तो ये tan थीटा की वैल्यू है। हम्म। समझ आ रही है बात? हाँ ठीक है सर, समझ गया। हाँ राइट। कोई आर्ग्यूमेंट तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट बराबर का मतलब क्या है सोचना है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है सोचना है। अब आई डोंट वांट टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस बिकॉज़ यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट वेक्टर्स, तो लेट्स थिंक कि वो सेम है, tan वैल्यू सेम है। अब ये देख लो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, cos गामा प्लस आयोटा sin गामा, ये दे रखा है तुम्हें, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू हाउ मच, e टू द पावर आयोटा अल्फा, b इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा बीटा। ये बिल्कुल सिंपल लेवल 1 क्वेश्चन। c इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा sin आयोटा गामा। ये क्लियर है क्या दे रखा है? Yes, sir. राइट। नाउ b by c क्या होगा? b by c will be now b by c plus c by a plus a by b equal to क्या होगा? ये 1 दे रखा है। b by c क्या होगा? e to the power iota बीटा माइनस गामा। c by a क्या होगा? e to the power iota गामा माइनस अल्फा। और a by b क्या होगा? e to the power iota बीटा माइनस अल्फा। ये समझ आ रही है बात? 1. हाँ ये भैया। अगर 1 दे रखा है तो ये बहुत क्लियर है, दिस इज cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा sin बीटा माइनस गामा। ये समझ आ रहा है? ये cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा sin बीटा माइनस गामा, cos ऑफ अल्फा गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा sin गामा माइनस अल्फा, एंड ये सिमिलर ये चलेगा। ये क्लियर है? और ये प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। दिस इंप्लाइज cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ गामा माइनस अल्फा plus cos of alpha minus beta. Can we say this is equal to 1? And can we also say that sine of beta minus gamma plus sine of gamma minus zero alpha हो जाएगा। plus sine of alpha minus beta, this is equal to what? 0. 0 So simple level 1 questions, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। Is it clear? Let's move further. ये देख लो जी, ये क्वेश्चन का B होगा। है ना, वो तो दे ही रखा है भी होगा। नहीं भाई वैसे भी अरे दिस तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये d इक्वल टू है, ये दिस इज d इक्वल टू, तो सीधा a इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 अल्फा, b इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 बीटा, c इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 गामा, एंड d इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 डेल्टा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। abcd क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ abcd is equal to how much? E to the power iota 2 alpha plus beta plus gamma plus delta. कहानी आ गई? Is it clear? And can I say that root of 1 by root of ABCD, it is equal to e to the power minus iota 2 of alpha plus beta plus gamma plus delta. भैया Clear है? ऊपर 2 काटना पड़ेगा ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या? स्क्वायर रूट ले रहे हैं शायद स्क्वायर से। रूट ले रहे हैं, ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यस यस। Two दिस टू द चलेगा। पावर हाफ है, दिस टू द पावर हाफ है, एंड दिस टू द पावर हाफ है। This is equal to e to the power iota alpha plus beta plus gamma plus delta, and this is equal to e to the power minus iota alpha plus beta plus gamma plus delta. तो खत्म हो गया। This implies under root of ABCD plus 1 by under root of ABCD, it is equal to ये वाला e to the power sigma alpha plus e to the power minus iota sigma alpha। ये तो सम कर रहे हो, कॉन्जुगेट्स का सम कर रहे हो, तो this is twice of cos of अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इसमें क्या ही है, घटिया क्वेश्चन है। तो इज इट क्लियर? क्लियर है कहानी? दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या कर रहा है? हाँ भैया। कंफ्यूजन तो Yes, नहीं है sir. इसमें? नहीं। राइट, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, दिस इज डिफिकल्ट, अ बिट डिफिकल्ट। ये कर लो, चलो एक डिटरमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन कर लो। लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट्स। राइट, सो आई विल जस्ट कॉपी दिस। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे नीचे प्लीज। बिल्कुल।
Right. Let's try and do this. Let this be the last question. है ना जी, कर लो. अभी डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट को खोलना शायद नहीं आता होगा, या शायद करा होगा ट्रायंगल को खोलने के लिए. कराया खोला था था? Yes, sir. में हुआ था, वेक्टर्स में हुआ था. वेक्टर्स में हुआ था ना, a into determinant of e f h i प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, into b of d g f i, and then the last part is, कहीं से भी खोल लो, किसी भी जगह से खोल सकते हो तुम, प्लस c of determinant of what, d e DI, d h, DGFI. and then you solve this. This is equal to a into ei minus fh and so on, right? है ना? तो अब डिटरमिनेंट खुलना नहीं है. अब यहाँ let's write determinant. What is the determinant given to you? I'll just write it again. 1 minus iota and minus iota. Right, so let's just finish off after this class. This is question, last question. So 1 minus iota, 1 plus iota plus omega square, and then we have minus 1, and then we have iota plus omega minus 1. तो यहाँ पे क्या है, omega square minus 1 omega square minus 1 minus 1. and then we have minus 1. तो 1 minus iota 1 plus iota plus omega square minus 1, ठीक लिख दिया ना हमने. ये डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, ये दिस इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट. ठीक है, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना शायद पता नहीं कर रहा है. अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द ट्रांसफॉर्मेशंस. नोट कर देते हैं, इनडिटरमिनेंट्स following transformations are allowed, and we'll talk about proof of the same in 12th class, or you can open up NCERT of 12th class and understand the logic of it. It is not that difficult, and वो वैसे भी मैं कराऊंगा नहीं, खुद ही करना है तुम्हें. मुझे डिटरमिनेंट मैटर्स आता नहीं है, कभी पढ़ूंगा जिंदगी तो बता दूंगा. राइट, तो तुम्हें खुद ही पढ़ना है. तो डिटरमिनेंट मैटर्स में वैसे भी बिल्कुल एंड ऑफ 12th में कराता हूं, तुम्हें खुद ही पढ़ना होता है. तो इट इज बेटर you can open up your 12th NCERT and try and understand what is the logic of it, how we open determinants. Right, first chapter determinants matter is NCERT का, बहुत simple language है, you try and understand it. क्या बोल रहा हूँ जी, R1 equal to some value into R2 plus some value into R3, this is loud, है ना? और R2 equal to some value into R1, sorry R1 में ऐड करना पड़ेगा, R1 equal to R1 plus something into R2 plus something into R3, this is allowed. रो को अगर चेंज करना है तो, है ना, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली. यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट, यू कैन टॉक अबाउट R2 is equal to R2 minus कुछ भी, है ना, सन. R1 प्लस कुछ भी ले लो, है ना, बॉक्स टाइम्स R3, जो मर्जी कर सकते हो, है ना. सिमिलरली फॉर कॉलम्स, you can say column 3 is equal to column 3 plus something times something times column 1 plus something times column 2, right? So determinant की value does not change. सर रोज और कॉलम्स कौन कौन से हैं इसमें? इसमें R1 का मतलब रो 1. अभी करते हैं, let's try and do this in this में करते हैं. तो इसमें ये है रो, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. तो हम कुछ भी करके क्या करने की कोशिश करते हैं, हम कोई दो रो को सेम करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को सेम कर देंगे तो ओवरऑल आंसर डिटरमिनेंट का 0 हो जाता है. अभी देख लेते हैं क्यों, व्हाई एम आई सेइंग दिस. अब अच्छा देखो, मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करूं, मैं रो 1 में रो 3 ऐड कर दूं, रो 1 में रो 3 ऐड करूंगा तो 1 माइनस आइटा आ जाएगा रो 1 में. क्लियर है? रो 2 का कुछ नहीं करा, रो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा, रो 3 को सिंपली ऐड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, है ना. इन दोनों को ऐड करूंगा तो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ना, और ये क्या है, ओमेगा 1 और माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू -1, है ना. और ओमेगा स्क्वायर में -1 ऐड होगा तो ये वाला पॉइंट ये वाला बन जाएगा.
ये फीलिंग आ रही Yes, है? sir. So Yes, the sir. transformations which I am doing, let me just copy paste this. So this is the determinant. Right. So what we are trying to do is that row 1 is transformed to row 1 plus row 3. This is what I am doing. So what do we get? We get D is equal to 1 minus iota, और ये -1 ही बन गया है, और ये क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर -1, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और नीचे क्या आया? माइनस आयोटा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1 and we'll play in transformations later on in determinants. Is it clear क्या कर रहा है? अब देखो ये फील करो, ये जीरो होगा. क्यों मैं खोलता हूं? मैं रो 3 के हिसाब से खोलता हूं. ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस. तो जब मैं लिखूंगा माइनस आयोटा इनटू इसका डिटर्मिनेंट, तो ये जीरो होगा. बिकॉज दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करेंगे, जीरो आएगा. फिर करेंगे माइनस ऑफ माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1, ये वाली कहानी, इनटू इसका और इसका डिटर्मिनेंट. तो उसमें क्या होगा? दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस होगा. ये फीलिंग आ रही है? फीलिंग आ रही है? फिर यहां पर प्लस -1 इनटू इसका डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, वो अगेन जीरो हो गया. तो कोई भी दो चीजें अगर क्या हो जाए, दो रो सेम हो जाए, दो कॉलम सेम हो जाए, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो. Zero. छोड़ो, एक स्टेप और आगे. लेट्स डू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन. लेट मी से रो 1 नाउ कैन बी रिटन एज रो 1 माइनस रो 2. डिटरमिनेंट वैल्यू विल नॉट चेंज. इफ आई राइट इट लाइक दिस, तो खत्म ही होगी कहानी कि रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगी? 0 0 0 1 माइनस आयोटा -1 0 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा प्लस ओमेगा -1 and this determinant by default is what? 0. ये फीलिंग आ रही है? Is it clear how transformations are being done? हाँ भैया. Right? You can do a column transformation also. Let's try and do a column transformation. Column transformation करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, 1 माइनस आयोटा है. अगर मैं इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा आ जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से शायद ना हो. ओमेगा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आएगा. रो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेटर. रो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेटर इन दिस. तो इसमें कुछ ना कुछ 2 से मल्टीप्लाई करके या दो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी. पहले ओमेगा हटा दूं मैं इसका, ओमेगा हटाकर, हाँ थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ दो. राइट. सो दिस क्वेश्चन डज नॉट सीम टू बी बेटर विद रिस्पेक्ट टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर है बात? रो ट्रांसफॉर्मेशन से आसान हो रहा है ये. रो ट्रांसफॉर्मेशन सीधा बराबर हो गई थी वैल्यूज. ये क्लियर है क्या करा है हमने? इज इट क्लियर व्हाट यू हैव डन इन दिस क्वेश्चन? हाँ भैया. Right? Now I can give you a bit more questions. You can try and solve them. A couple of more questions I can give you. We can try these questions in your free time. Right? तो ये मेरा thought था कि डिस्कस करेंगे, पर ये कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा. Copy and I'll paste it here. So try and attempt these two questions. This is again an easy question, not very easy question for to be doing for the first time. तो यहाँ पे कुछ पॉलीगन की बातें होंगी कि z and z conjugate are polygons are corners of a polygon. तो एंगल से करना होगा काम कि ये एंगल 2 पाई बाय n होता है, तो ये एंगल पाई बाय n होगा और ये एंगल भी पाई बाय n होगा. देख लेना एक बार, समझ आ जाएगा ये. So I'll give the solution probably in the next class, or I'll record a video. Similarly this question, this is seeming to be difficult question, पर अगर तुम लिखोगे वही ना, इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो, मैं लिखूँ मत इसको. आई एम जस्ट डिलीटिंग देम. छोड़ दो. I'll discuss them. बेकार में फंस जाओगे. Try and do the questions of the module, that is more important. Is that clear? Right? तो समरी की बात करें तो हमने क्या करा है, 1 to 14 11 12 में कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वाले. 13 14 में कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. So we've discussed question 13 14, they are cube roots of unity. Right? Then we talk about 15 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो थी, प्रूविंग थी. 15 16 17 there again same type of questions. 17 onwards we talked about this property, e to the power iota theta. तो ये प्रॉपर्टी की बात हुई है 17 onwards, है ना. तो ये if we talk about summary,
तो क्वेश्चन 15A 15B 16 की बात अगर हम करें राइट, तो उसमें हमने क्या करा है, प्रूफ की बात करी है, कॉम्प्लेक्स क्या करें मतलब इक्वालिटीज की बात करी है, या बेसिकली कॉम्प्लेक्स कुछ ही बोलते हो ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बोलते हैं, नॉट एग्जैक्टली एन इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स बोल दो, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को डील करा है हमने, ऐसे लिख लो, है ना। एंड देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17 18 19, है ना, 18 तक हम ये चल रहे थे, 17 18 में भी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, e टू द पावर आयोटा थीटा पे बेस्ड क्वेश्चंस थे ये, और फिर उसके बाद हम लोकस पे आ गए थे सीधा। 17 18 में हम लोग ये करा था क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 23, नहीं सब लोकस के क्वेश्चंस करे हमने, 26 27, they are all questions based on locus. So question number 19 to 27, the based on locus, right? And then we have done some random questions 24 25, वो सब e to the power iota based questions है, there's some random questions. This is your summary, so you can try and figure out things using this. Clear है बात सबको? राइट, एक बार रिवाइज करो ये सारे क्वेश्चंस। इफ वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल में मैं सिर्फ एक चीज तुम्हें नहीं कराई, 2-3 मैं बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो मॉड्यूल में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सेक्शन 12, राइट, तो अभी के लिए स्किप सेक्शन 12, राइट, तो स्किप सेक्शन 12 which is page number 16, right? तो triangle inequality की बात हम नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, I'll try and do that in the next class whenever I take it, है ना। Then you can skip section 16, page number 24, section 16 छोड़ दो, section 17, page 27, you can skip these sections because these are parts of 12. हमने लोकाई की बात कर ली है, पर लोकस भी छोड़ दो, जितना कराया उतना ही करेंगे। सेक्शन 18 लोकस की थोड़ी बहुत बातें करी है मैंने, 29, तो 24 to 29 की सारी कहानियां छोड़ सकते हो, तो ये कहानियां हैं 24 to 33, यू कैन स्किप दिस पार्ट। क्लियर है? फिर रूट्स ऑफ यूनिटी है वो हम कर चुके हैं, राइट, सो देन सो यू कैन डू क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। क्लियर है बात सबको? भैया आर्काइव में बता दोगे कौन से छोड़ने होंगे? आर्काइव में बड़ा मुश्किल है, तो क्वेश्चन देख लेना ना, समझ आ जाएगा लोकस का है कि नहीं है, ठीक कैसे है, के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री वाले मोस्टली ज्योमेट्री वाले छोड़ देने, खत्म बात, ठीक। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ के समझ आ जाएगा कि हाँ। ये हमारे लायक था नहीं था, खत्म, राइट। सो नाउ यू कैन एग्जिट, है ना, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर कंसेक्यूटिव टॉर्चर ऑन 2 डेज। सर ओबीटी होगी इस चैप्टर की? बिल्कुल ओबीटी होगा, टेस्ट होगा, संडे मॉर्निंग टेस्ट होगा, अभी दोबारा एक दिन बाद देखेंगे। I'll talk about some PYQs, तो PYQs की क्लास होगी, I'll take another class और I'll do a recording, वो पता चल जाएगा। तो PYQs की क्लास में सबने आना है बाय डिफॉल्ट, वैसे सर नेक्स्ट क्लास कब सर होगी? सैटरडे को तो शायद से, लेकिन फिजिक्स की क्लास है। सैटरडे को फिर, हाँ, तो इस बार टेस्ट नहीं होगा, फिर वो टेस्ट अगले बार होगा, ठीक है। सैटरडे को फिजिक्स की क्लास है, तो इस बार टेस्ट नहीं होगा। सर PYQ कब होगा? PYQs क्लास सेम कब होती है बताओ? एक दिन छोड़कर थर्सडे, परसों। थर्सडे, बिल्कुल सेम टाइम पे होगी। तो I might take some part of that class or I might record a video and then Himanshu भैया will continue, वो देख लेंगे। So everybody must be there, ठीक है, चलो, गुड नाइट, बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। Thank you, भैया। थैंक यू सर। Thank you, sir. So you do these questions, then only thank you makes any sense, है ना। Okay, bye, बाय। थैंक यू सर। good night बेटा, good night, good night all, थैंक यू भैया। welcome। हाँ बताओ चहक, क्या डाउट है? हाँ भैया, मैं पूछ रही थी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वाली है, तो जो नेक्स्ट थ्योरी वाली क्लास है जो आप लेने वाले हो, हाँ वो वो- उसमें रिवाइज कराऊंगा, 12th में रिवाइज करूंगा, अगर मैं यूज करूंगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो आई रिवाइज दैट। तो ठीक है। लाइक मतलब अभी मुझे 11 की कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्लास अटेंड PYQs की क्लास यू शुड अटेंड ऑन नेक्स्ट थर्सडे, अभी जो थर्सडे हो रही है, कमिंग थर्सडे, एक दिन बाद, ठीक है। और आई माइट रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो फिर बट लाइक वो वीडियो मुझे कैसे मिलेगी? मतलब कोई either idea वो नहीं? you will get it, either you will get a video, और थर्सडे को वो जो क्लास होगी उसमें पता चल जाएगा। थर्सडे इवनिंग को कोऑर्डिनेट नितिन भैया से पूछ लेना,
कोऑर्डिनेटर भैया से पूछ लेना ये कोई वीडियो आया या नहीं? ये वीडियो आई है, क्लास हुई है, तो थर्सडे क्लास में आना है, ठीक ठीक है है, टीवाई की उसकी क्लास होगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया, बाय। ओके, वेलकम, बाय। समझ आ गया अब? हाँ हाँ भैया, मतलब हाँ? सारी थ्योरी एक जगह हो गई ना, तो एक नोटबुक में अब अलग अलग बुक से ही पढ़ना, तो फिर अब क्लैरिटी हो गई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हम्म है ना? तो बाकी विल डिस्कस ज्योमेट्री इन द 12th लेक्चर्स, ठीक है? चलो, ठीक है, हाँ, थैंक ओके, यू। वेलकम। अनन्या बताओ, भैया क्वेश्चन 16 में डाउट है। किसमें बताओ? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 16 16 जो उससे पहले वाला आपने जो एक्सप्रेशन बताया था वो यूज हो रहा है इसमें, तो वो कैसे यूज हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। भाई दिस, ये देखो ना, समथिंग प्लस स्टार प्लस क्लाउड सोचो, ऐसे सोचो कि क्या क्या हो क्या रहा है, इसको स्टार क्लाउड सोच लिया करो कि स्टार प्लस क्लाउड इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्टार प्लस क्लाउड बाय 2। ये तो है ना, मॉड ऑफ स्टार प्लस मॉड ऑफ क्लाउड इज मॉड ऑफ स्टार प्लस क्लाउड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ स्टार क्लाउड। ट्राई टू मेक इट अ ड्राइंग। प्लस स्टार प्लस क्लाउड बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ स्टार क्लाउड इस पूरे का मॉड। ठीक है, ये तो लिखा है। अब ये तुम्हारा क्या है, स्टार, और ये तुम्हारा क्या है, क्लाउड। तब स्टार प्लस क्लाउड करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, स्टार प्लस क्लाउड बाय 2। क्लाउड बाय 2, हाँ। तो स्टार प्लस क्लाउड करेंगे तो ये ठीक है, नेगेटिव का समझ पार्ट कट गई। जाएगा, हाँ हाँ और क्या आ जाएगा, 2z बाय 2। हाँ, 2z1 बाय 2 क्या आएगा, z1 Z1, ठीक है। प्लस स्टार इंटू क्लाउड का अंडर रूट। तो स्टार इंटू क्लाउड का क्या करना है, अंडर रूट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, z1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। हाँ तो यही बन जाएगा ना, z1 स्क्वायर माइनस दिस अंडर ठीक है, रूट ठीक स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया। हाँ भैया समझ गई, ठीक है। z1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, z2 स्क्वायर का अंडर रूट, z2 बच गया। और भैया एक और चीज पूछनी है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 18 करवाया था, हाँ उसमें जो आपने पहले नहीं 18 19 है वो। सॉरी भैया 26 है। तो इसमें जो आपने ये बताया था कि x-1 अपॉन y इज इक्वल टू x बाय y बाय 3, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ फिर, क्योंकि इससे हमारी वैल्यू नहीं आई। क्या मतलब जो जैसे हमें x-1 इज टू y की रेशियो चाहिए था, तो वो तो हमारा x बाय y प्लस 3 आया ना, तो उसका क्या यूज हुआ फिर? क्या आया, x बाय y प्लस 3 आया ना वो। x बाय y प्लस 3 क्या आया, ये जो आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसमें क्या आया, x बाय y प्लस 3 आया, समझा नहीं मैं। नहीं जो आपने लिखा हुआ है ये के नीचे, हाँ ये, हाँ, ये तो आपने आंसर निकाला, तो ये दूसरा मेथड था ना जो आपने करा था कि tan इनवर्स लेके। नहीं सेम मेथड है ना, दोनों से सेम इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन तो मैंने सॉल्व ही नहीं करी थी। तो ये मतलब कंटिन्यू हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आई ना। तो मतलब हम फिर इसको निकालने की जरूरत नहीं थी ना, जो ऊपर आपने tan थीटा निकाला है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे tan हाँ इनवर्स हाँ, से। मैंने तो फीलिंग से करा था ना, आई रीच दिस इक्वेशन विद फीलिंग्स। अच्छा, बस आप ये समझा रहे थे। हाँ, मैं फीलिंग से निकाल रहा था कि ये इक्वेशन फीलिंग से भी आ सकती है, और फिर हमने कहा छोड़ो, भाड़ में गई फीलिंग, मैथ से निकाल लो ये इक्वेशन, अच्छा ठीक है, और फिर हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो समुद्यान। सर आपने जो ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना 22, उसमें हमने z माइनस ऑफ माइनस आयोटा क्यों लिखा था, ये समझ नहीं आया मेरे को। जस्ट टू फील ना कि z माइनस z नॉट का मतलब होता है ना z का z नॉट से डिस्टेंस, सो दैट यू आर एबल टू फील कि ये नंबर कौन सा है। यहाँ देख के लोग समझ आते हैं नंबर आयोटा है, नंबर आयोटा नहीं जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये नंबर कौन सा है, माइनस आयोटा। कैसे, दिस इज z माइनस ऑफ माइनस आयोटा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम माइनस आयोटा। अच्छा ठीक है सर। और जो हमने लास्ट में वो रो और कॉलम वाली ट्रांसफॉर्मेशन की थी, हाँ, वो तो बस हमने अपन वो करने के लिए की थी ना, कि मतलब वो बस जीरो आ जीरो आ जाएगा। यस, हाँ हमेशा जरूरी नहीं जीरो आएगा, ठीक है हमेशा जरूरी नहीं दो रो कॉलम सेम हो जाएंगे।
हाँ हाँ ठीक है सर। और एक और चीज बस पूछनी थी कि वो जो क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था ना, उसमें वो हमने मॉड से बाहर कैसे निकाल दिया था, मॉड ऑफ रूट z1 स्क्वायर और मॉड ऑफ रूट z2 स्क्वायर को? कौन सा? सर ये वाला। क्या बाहर निकाला ये? हाँ हाँ z into z बार क्या होता है? नहीं वो तो समझ में आ गया। अच्छा हाँ वो नहीं मैं मॉड लगाना भूल गया इनमें। ठीक है z into z बार इज mod z स्क्वायर लगाया। हाँ Z1 into वो Z1 तो बार। हाँ वो मैं एंड के आंसर में मॉड लगाना भूल गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है थैंक यू सर। ठीक है चलो वेलकम। सार्थक। सर मेरे को 15 बी में था। बताओ। 15 बी में अगर हम लोग जो आपने बताया था हमें यूज करना है a प्लस बी प्लस 2ab 2 रूट ए बी यूज करना है हमें। अगर हम इसको शुरू में इसको बाय 2 करके इसी को हम लोग इसी से स्टार्ट कर दे, वैसे कर सकते हैं क्या? मतलब a प्लस बी प्लस 2 सर जैसे a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है, इसको ही बाय 2 कर दें दोनों साइड्स पे, और फिर रूट ए प्लस रूट बी बाय का होल स्क्वायर बाय 2 उससे सॉल्व करें ऊपर वाली को प्रूव करने के लिए। बात सेम ही तो है, वैसे कर लो, उसमें क्या है भाई। तुमने वो एक तरह से इस इक्वेशन का इस क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन बोल लो, फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशंस बोल लो, इसको तुमने इसका नया बना दिया, किसी कॉलर बना दिया, तुमने यहाँ भी डिवाइड बाय 2 कर दिया और यहाँ भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, जस्ट टू मेक इट सिमिलर। हाँ हाँ फिर तो वो ये सेम डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ सर Directly जो मेरे expression होता डायरेक्टली आंसर आ सेम ही रहा था, आएगा। लेकिन फिर मेरे को हाँ। डरने लगा, फिर नहीं मेरे क्या को हो डर गया, लगने लगा कि कुछ डिवाइड बाय गड़बड़ 2 तो कर नहीं तो की। कोई नई इक्वेशन हो रही है, उसमें क्या है, एक नई कॉरोलरी वाली इक्वेशन तुमने याद कर ली, पर वो अगेन ये याद नहीं रहेगी ना, ये तो नेचुरली हाँ। याद रहेगी, वो नेचुरली याद नहीं रहेगी, नेचुरली है अप्लाई हो सर। जाएगी बेसिकली। तो ठीक है हमेशा सर। कोशिश करनी चाहिए कि और जितनी सर जनरल फॉर्म में चीजें याद करो उतना बेटर है, बिकॉज उनकी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है सर। और सर क्वेश्चन 22 में एक ऑप्शन फोकाई का भी था, फोकाई का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन 24 में बी एन एलिप्स एट फोकाई। कौन से क्वेश्चन में? 22 सर, 22। हाँ ये इलिप्स के फोकस होते हैं, दो फोकाई होते हैं, ये ऐसे दो फोकस होते हैं, ए कॉमा ए करके होते हैं, दो फोकस होते हैं। In fact, any ray which passes through one focus of ellipse, it passes through other focus of ellipse. This is the property of ellipse. ये फ्यूचर में पढ़ोगे। एंगल आई कुछ एंगल आर जैसा। हाँ तो कोई एक रे अगर किसी एक इलिप्स से पास कर रही है तो दूसरे इलिप्स के दूसरे फोकस से पास करेगी, फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी कोनिक सेक्शन से पढ़ोगे इसको। ठीक है राइट, तो सर। यूएसए में एक परफेक्ट इलिप्सोलॉइड है, यहाँ पर एक आदमी का कान अगर इस पॉइंट पे हो, एक फोकस पे हो, और दूसरे आदमी का कान इस फोकस पे हो, तो जो भी वो बोलेंगे क्रिस्टल क्लियर दोनों को सुनाई देगा एक दूसरे को, और बाकियों को नहीं सुनाई देता कुछ भी, है ना, बट इन दोनों को एक दूसरे की बात एकदम सुनाई देती है। Because any ray which passes through here passes through this point. That is the property of an ellipse. So we'll talk about that later on in conic sections. ठीक है? और बस सर एक जनरल चीज पूछनी थी, जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उसकी सर वेटेज कितनी ज्यादा होती है? कुछ नहीं होती, क्वेश्चन कहाँ ही होते हैं, क्वेश्चन वैसे भी नहीं होते, जितना मर्जी पढ़ लो। सर वही मैं इतना पढ़ के गया था और किसी भी टेस्ट में नहीं आई, ना 80 मेंस में, ना 80 that- एडवांस में। हाँ तो देख लो ना बेसिकली कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से एग्जामिनर को भी डर लगता है, तो इसलिए आते ही नहीं है, और आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो होते नहीं है, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन हम पढ़ पाएंगे, कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त हाथ नहीं लेंगे हमारे, यदि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गए देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन होने वाला है नहीं होने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस है हमें, बस। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। वेलकम। प्रियल। सर वो मुझे लास्ट क्वेश्चन में ही पूछना था कि जैसे आपने रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करी, तो वैसे ही मतलब वही सेम वो जीरो, उसको जीरो लाने के लिए हाँ, किया था, मेहनत बचाने के लिए करा है ना। अब हम ये फ्यूचर में कैसे करेंगे, कल एक ना आए तो दो तो आए, कम से कम ये तो सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, ये नॉन जीरो आ गया तो फिर एक ही डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये हम फ्यूचर में करेंगे। हाँ हम फिर रो 2 को भी फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, अगर उसके अकॉर्डिंगली वो हाँ रो 2 के भी कर सकते हैं, तुम रो 2 में कर लो, ये काम रो 2 में तो कर सकते हो भाई, तुम रो 3 में कर लो, इंस्टेड ऑफ रो 1 करना है तो रो 3 में कर लो, कि रो 3 इज रो 3 प्लस रो 1 कर लो। हाँ वही सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। रो 2 में कर लो एक काम, कॉलम में कर लो एक काम, कहीं भी कर लो। तो वो चूज करना पड़ेगा कहाँ से जीरो इजीली आ रहा है। यस ठीक है ठीक है, बस यही डाउट था। थैंक यू सर। चलो वेलकम। चलो बाय एवरीवन। ठीक है नितिन, प्लीज एंड द सेशन और अपलोड कर देना बेटा।